سفلی عملات، کالا جادو یا پھر اس طرح سے ریلیٹڈ بہت سارے عملات انسان کی زندگیاں کس طرح کھا جاتے ہیں۔ آپ کے پرانے کپڑے جو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں وہ کالے جادو کے لیے یا سفلی عملات کے لیے کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ انسان جب ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوتا ہے تو کس طرح جادو ٹونوں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے۔ یہ عملات واقعی انسان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ چل 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 دفاع ٹوٹ گیا، جیب سے پیسے پالے جیب سے۔ ان نظروں کو یہاں سے دیکھیں، جینا دوبر ہو جاتا ہے، زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی شخص کا کلا کما کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بولتا کالم ود یاسر شمعون کے ساتھ میں یاسر شمعون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، سفلی عملات، کالا جادو یا پھر اس طرح سے ریلیٹڈ بہت سارے عملات انسان کی زندگیاں کس طرح کھا جاتے ہیں۔ انسان جب ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوتا ہے تو کس طرح ان تمام جادو ٹونوں کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، یہ بھی آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ عملات واقعی انسان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ کامیاب ہونے لگتے ہیں لیکن لوڈو کے سانپ کی طرح ان کو ایک سانپ لڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ 99 کے اوپر یعنی کہ 99 کے اوپر پہنچتے ہیں تو سانپ ان کو لڑ جاتا ہے اور ان کا 100 پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ منزل مقصود نہیں ملتی۔ سب سے پہلی پہچان۔ دوسری پہچان، چہرے کے اوپر عجیب سی چھائیاں اور داغ دبے بننے لگتے ہیں۔ تیسری پہچان کہ دل کچھ کرتا ہے کرنے کے لیے لیکن انسان عملاً کچھ کر بیٹھتا ہے، اور وہ جو کر بیٹھتا ہے وہ یقیناً غلط ہوتا ہے اور منزل مقصود ملنا تو بڑی دور کی بات بلکہ کسی بڑی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ چوتھی سب سے بڑی مثال کہ جو لوگ جن کے دلوں میں آپ بستے ہیں وہی لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ شخص کوئی اور نہیں ہوتا، کسی طلسم، کسی جادو کا شکار ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے پرانے کپڑے جو آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں وہ کالے جادو کے لیے یا سفلی عملات کے لیے کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر وہ لوگ جو اپنے کپڑے ظاہر ہے کسی فلاح کی خاطر، کسی فلاح کی غرض میں عزیز رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں کہ یار یہ استعمال تم کر لو، تم اپنا جسم ڈھانپ لو، چاہے اس کے پیچھے کتنی ہی اچھی سوچ کار فرما کیوں نہ ہو۔ لوگ کرتے کیا ہیں، جیلسی اور ایک خطرناک قسم کی رنجش پال کر اپنے دل میں پھر اس کے اوپر کالے جادو اور عملات کرواتے ہیں۔ قبر کے اندر کسی شاپر بیگ میں ان کو ڈال کے اس کے اندر سنتور پھینک کے تویزات رکھ کے اور پھر باقاعدہ طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا اور اس کا آپس میں خطرناک جھگڑا ہو جائے، اس کے گھر کی بے سکونی ختمی ہو جائے اور یہ موت کے منہ کو چلا جائے، یا پھر یہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو جائے، اس کی آنکھوں کا مسئلہ بن جائے، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے۔ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور وہی عمل پڑے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آیات قرآنی کو الٹ کر کے توبہ نعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، لیکن ناظرین آپ اکثر نہر کے کنارے جا کے دیکھیے کہ درختوں کے اوپر بندھے ہوئے تعویذ، محبوب قدموں میں لانے کے ٹوٹکے، اور یہ کرنے والے عناصر یہیں کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ لیتے ہیں، آپ کی کامیابی کو بھانپ لیتے ہیں، اور وہ رشتہ دار تعلقات رکھنے والے لوگ جو آپ سے خواہش اور حسد کی نظر رکھتے ہیں وہ انہی افراد کے ذریعے آپ کی زندگیوں کو نہ صرف کھوکھلا کر دیتے ہیں بلکہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک مدت کے بعد پیدا ہونے والی اولاد کو قبر میں اتار دیتے ہیں۔ ناظرین، جادو ٹونا تو بہت بڑی بات، بد نظری اتنا بڑا فعل ہے کہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ ہمارے عموماً عزیز رشتہ دار پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایک صاحب عقل ہوتے ہیں، صاحب دانش ہوتے ہیں، چہرے کے بھی دیکھنے والے نارمل انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کام کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس چیز کو پکڑتے ہیں
वो चीज़ उनके हाथों से ख़राब हो जाती है। अमूमन उनके हाथों से गिलास टूट जाते हैं। अमूमन वो जो कपड़े पहनते हैं उनके ऊपर किसी का ब्लेड का टक लग जाता है। अमूमन वो लोग पानी के छट्टे रात को सोए हुए महसूस करते हैं। वो शदीद किस्म के जादू टोनों के शिकार हो चुके होते हैं। कभी कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं बनती, क्योंकि कामयाब तो आपने खुद होना होता है, लेकिन नाकाम करने वाले अफराद आपके इर्द गिर्द ही होते हैं, जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी होती है। हमारे बोले जाने वाले चंद सख्त अल्फाज किसी को भी दरीना दुश्मनी के ऊपर मजबूर कर सकते हैं। हद तो ये है नाजरीन कि बच्चियों के रिश्ते होते ही नहीं। कई साल 40 साल की बच्चियां हो जाती हैं और उनके रिश्ते नहीं होते। ये रिश्तों को रोकने वाला अमल क्या होता है? बच्चियों को जब माहवारी आती है उसमें जो इस्तेमाल होने वाले कपड़े या पैड होते हैं वो अमूमन लोग अपनी डस्टबिन में फेंक देते हैं। वो डस्टबिन में शापर में बंद करके फेंकते हैं। जब गार्बेज कलेक्टर आता है उसके हवाले ये सब कुछ किया जाता है, तो गार्बेज कलेक्टर बाकायदा तौर के ऊपर इनको पैसों से फरोख्त करता है। आपकी कंघियों में उतरे हुए बाल, आपका बनाव सिंगार करते हुए बाल, आपके चेहरे के महासों की निकला हुआ मवाद, ये सारी की सारी चीजें खतरनाक जादू टोने और सिफली अमलात के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि अक्सर लोग घरों में उल्लू और गो पाल के रखते हैं। ये आपको पता है क्यों पाल के रखते हैं? क्योंकि इसके खून से लिखे जाने वाले तावीज़ात के साथ इंसान का कला कुमा किया जा सकता है। कुछ ऐसी तदबीरें और कुछ ऐसी तहरीरें होती हैं जो उसके ऊपर पढ़ी जाती हैं, और वो पढ़ने के बाद जिस शख्स के साथ मंसूब किया जाता है उसकी ज़िंदगी को ख़त्म किया जाता है। नाज़रीन, ऐसा काम करने वाले अफराद यानी कि जादू टोना और सिफली अमलात करने वाले अफराद बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हमें ख़ानदानी तौर पे विरसे में ये काम मिला है। पहले ये मेरे अब्बा जी का डेरा था, वो ईद के ऊपर 1.5 से 2 लाख रुपया इकट्ठा किया करते थे। अब ये मेरा डेरा है और मैं रोज़ाना 40 से 50 हज़ार रुपये इकट्ठे करता हूँ। जिन बच्चियों की शादी नहीं होती, जिसने महबूब कदमों में लाना होता है, जिसे नरीना औलाद की ख्वाहिश होती है, जिसने बेटे को बाहर भेजना होता है, जिसे बच्चों की नौकरियाँ चाहिए होती हैं, वो किसी सफारशी इदारे के पास नहीं जाती, या बच्चों को लिखाते पढ़ाते नहीं हैं, या उस काबिल नहीं बनाते। वो सीधे उस आमल बाबे के पास जाते हैं और वो उसका तोड़ करता है। दर हकीकत काम सही करने की बजाय ज़िंदगी भर के लिए अपना मफलूज और अपना मोहताज बना के रख देता है, क्योंकि वही शख्स ऐसे अमल कर देता है कि वो घराना बार बार उसे दुरुस्त कराने के लिए उनके पास जाता है और वही अमल बाबा उनको बारहा लूटता है। पंजाब असम्बली में कानून साज इदारे ने एक बार इसके ऊपर कानून साजी भी करने की कोशिश की, लेकिन उसमें बुरे तरीके से नाकाम रही, क्योंकि असम्बलियों में बैठे हुए अरकान असम्बली भी काले जादू और सिफली अमलात को भरपूर तरीके से ना सिर्फ मानते हैं बल्कि मेरे ज़राया मुझे बताते हैं कि इसे अपनी ज़िंदगियों में शामिल भी करते हैं, यानी कि अपनी कामयाबी के लिए, अपने मुकाम के लिए, अपने मर्तबे के लिए, अपनी शोहरत के लिए और अपने जाहो जलाल के लिए। नाज़रीन, बात यहाँ पर ही नहीं ख़त्म होती। आप जानते हैं कि क्रिकेट में एंट्री टेस्ट के ऊपर पास होने के लिए भी जादू टोने और अमलात करवाए जाते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं जो शख्स कोमे में चला जाता है, जिसे ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिसे डॉक्टर जवाब दे देते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ख़वातीन दुपट्टा लेकर अपने आप ही उधर पचूटी माई बन के मुँह में कुछ पड़ती चली जाती हैं। वो एक हवाई अमल होता है, या उससे ज़िंदगी मिल जाती है या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अब हवाई अमल को पढ़ने के बाद मिलने वाली ज़िंदगी हराम है हलाल है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता चला जा रहा हूँ। अमल बाबे और इस तरह की खुराफात पालने वाले और इस तरह की हरकतें करने वाले इतने ख़तरनाक होते हैं कि बाकायदा तौर पे किसी की जान लेने की भी सपारी उठा लेते हैं, लेकिन ये गोली से नहीं मारते, ये अमलात के साथ लोगों को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। आपने किसी का घर तबाह करवाना हो, किसी की जान ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म करनी हो, रूह कब्ज़ करवानी हो, तो ये अमलात उनके ऊपर किए जाते हैं। इतने माहिर लोग भी होते हैं कि जिनके सामने से तस्वीर गुजरती है तो ज़िंदगी भर के लिए उस शख्स के लिए एक अलमिया बना देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि या वो ज़हनी तौर के ऊपर मफलूज हो जाता है, पागल हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। नाज़रीन, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि बहुत बड़े कारोबारी शख्सियात
डोंगी बाबों को अपने पास पाल के बैठे हुए हैं और उनसे बॉन्ड के नंबर निकलवाते हैं। लाखों की तादाद से वो बॉन्ड खरीदते हैं, उनमें से वो एक नंबर निकाल के दे देता है। बॉन्ड इतने ज्यादा होते हैं वो लग ही जाता है, और कुछ उसका अमल भी इतना मजबूत होता है कि वो बॉन्ड लग जाता है। कोई एक बॉन्ड किसी फैमिली का किसी बाबे के नाम पर बताए हुए लग जाए तो समझ लीजिए कि उसके अगले पिछले खानदान उस बाबे के मुरीद बन जाते हैं। नाज़रीन, अक्सर आपने सुना होगा कि मिर्गी के दौरे, अक्सर आपने सुना होगा कि रात को टहल के उठ जाने वाले लोग। नाज़रीन, ये मिर्गी के दौरे भी बहुत कम लोगों को पड़ते हैं। दर हकीकत ये अमलात के शिकार लोग होते हैं। नाज़रीन, ये वही अमल बाबे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अमल करते हैं बल्कि लाहौर के और गिरदोनवा के तमाम थानों में ये थानेदारों की दलाली करने में भी एक अपना अहम किरदार अदा करते हैं। आप जिस थाने में चले जाएंगे वहां पे अगर 4 टाउट होंगे तो उसमें से एक टाउट आमल बाबा होगा। वो आमल बाबा पैसे पकड़ेगा, लोगों को तरगीब बताएगा, सदके सदकात के नाम के ऊपर पैसे पकड़ेगा और रिश्वत की बंदर बांट होगी और वो एक जाली अमल करेगा जिसका कोई असर ना होगा और थानेदार साहब ठक से बंदा छोड़ देंगे। और जिनका बंदा थाने से सही सलामत वापस आ जाए और बाबा जी ने कहा हो कि लितर भी नहीं पहन के कुछ भी नहीं होएगा, ये बाहर आ जाएगा, सी अमल ही जिदा पढ़ांगे, लेकिन ये सदके सदकात ने वो देने ने। मैं श्रीलंका तो, मैं बैंकॉक तो, मैं युगंडा तो, मैं साउथ अफ्रीका तो मंगवा के चीज़ां देनियां। अब वो आम आदमी नहीं ला सकता, वो मुसीबत का मारा होता है और इन बाबों का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, आपको हैरत में मुब्तला कर दूं कि पंजाब पुलिस में जो झूठे पर्चे होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता पंजाब पुलिस को कि ये कौन शख्स अमीर है और कौन गरीब है। ये अमल बाबों की रसाई घरों तक होती है और उन्होंने घर का पहनावा और रहन सहन देखा होता है। वो बताते हैं कि इन्हां दा मुंडा, इन्हां दी जान तो ज़्यादा अजीज़ है, मेरे को अमल करवा रहे ने, तुसी इहदे ते परचा दे दिओ, उस परचे को ख़त्म करांदे मैं इन्ने पैसे चुक लांगा, अद्धे तुहाडे अद्धे मेरे। ये मैंने कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें और कुछ रास्ते आपके सामने ओपन किए हैं। इस माशरे के अंदर मैंने बड़ा ख़तरनाक काम किया है। ये एक डेंजरस काम है कि इन लोगों को बेनकाब करने के लिए चल निकला हूँ। नाज़रीन, ये ताकत रखते हैं एक तस्वीर के ऊपर अमल पढ़ के। मेरी तस्वीर आज पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर रही है, मुझे लोग प्रोग्राम्स में देखते हैं। अल्लाह मुझे अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, लेकिन इन लोगों को बेनकाब करना बेइंतहा ज़रूरी है। नाज़रीन, आने वाले प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे पर्दे चाक करूँगा कि आपका दिल दहल जाएगा। आपके गिलास में छोड़ा हुआ पानी आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा कोहराम पैदा कर सकता है। आपने जो अपनी कंघी इस्तेमाल की है अगर वो चोरी हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी में क्या अज़ाब आ सकते हैं। आपके घर की रुकी हुई घड़ी आपकी ज़िंदगी में किन ख़तरनाक चीज़ों का अलदमिया दे सकते हैं। और इससे मिलती जुलती बहुत सी बातें तमाम इस व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में शामिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।